अब सूरत तो नहीं बदली जा सकती, ये वाली कहावत शायद अब बदलनी पड़े। मेडिकल साइंस ने ऐसी छलांग लगाई है कि अब इंसान का चेहरा भी बदला जा सकता है। देश का प्रमुख अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स नई दिल्ली एशिया का पहला फेस ट्रांसप्लांट करने की तैयारी में है। इसे लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिप्टी चीफ ऑफ प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर इंद्रनील सिन्हा ने सनमार्ग नेटवर्क के साथ खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये सर्जरी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन टीम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो ये भारत के मेडिकल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। ये पहल भारत के एडवांस मेडिकल साइंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इसे लेकर डॉक्टर इंद्रनील सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। I've been personally involved in approximately 5 of them, and I've been involved with the preoperative, operative, and postoperative part of it, and all 3 are very unique experiences with facial transplants. With the preoperative part, what I can say is there's a lot of planning that goes into these operations. They're technically quite difficult, and there's many operative teams involved. So from the patient perspective, we do our best to prepare them for the operation. There's a psychiatrist that meet with them. We certainly meet with them many times. We discuss the operation with them. The psychiatry team makes sure that they are proper candidates for the procedure. And then we also have the nephrology team meet with them to ensure that they receive the best match they can from a transplant point of view. As a surgical team, we then meet multiple times to ensure that we have the procedure itself well coordinated. We all know our roles and what we're going to be doing within the operation itself, and that we go over all the imaging and all of the technical aspects of the procedure, so we know exactly what we're doing when we get into the operating room. The time of the operation itself, it's a very busy time. Each of these operations are approximately 16 to 20 hours. And it has to go very smoothly, obviously. And then after the operation, some of the challenges are just making sure that the patient does well from a immunosuppression standpoint. The nephrology team is very important here because they're monitoring all of these medications. Rejection is a big concern in these patients, so we have to make sure that the medications are constantly titrated, and we're carefully checking on these patients multiple times daily. They're in the intensive care unit for the first week and then in the hospital with us for the next 1 to 2 weeks to ensure that they're doing okay before being able to go home. And then making sure that their immunosuppression is properly managed throughout their time with the face transplant is extremely important. Beyond that, also making sure that they have adequate physical therapy to ensure that their face transplant isn't just sitting on their face, but they're able to move their face properly is one of the biggest challenges as well, to ensure that they have the best possible result from their face. So, what do you think that how this surgery will be challenging in India? Yeah, in India specifically, I think one of the biggest issues is going to be convincing people it's okay to donate their face, and then also convincing people that a face transplant is going to be safe for them to get. So I think appropriately so, there's a lot of stigma with this operation. So all we can do is circulate that it is a reasonable operation to do in the right patient, and hopefully with education people will understand that this is the right thing for the right patient. Depression is something that anybody who feels that his face is disfigured, he cannot have any function of face. I think he can come forward and talk to us about how we can help by facial surgery or transplant. Sir, please also tell the challenges regarding the surgery और कितनी complications हो सकती हैं इस surgery में? Immense complications हैं graft rejection के, wound healing के, repeated infection के. So there are extreme challenges which are associated with this procedure. And I think more than 90% patients undergo some sort of complication which we can manage. जो पेशेंट्स कोमा में चले गए हैं, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई इंजरी हो जाता है, किसी ने मार दिया होता है, तो उसमें पेशेंट्स काफी समय कोमा में चले जाते हैं और उनका होश आने का उतना उम्मीद नहीं रहता है। तो ये अभी जो स्थिति है, इनका किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट
ये सारे जो कॉर्निया आँख का जो हिस्सा है ये सारे उनसे निकाल के दूसरे पेशेंट में लगाए जाते हैं। पर ये फेस ट्रांसप्लांट अभी तक ये पहली पहल है इसमें कि किसी का फेस आप निकाल के आप दूसरे पेशेंट में लगा रहे हो, जो पेशेंट की का चेहरा इतना खराब हो गया है कि वो ना बाहर जा सकता है, ना कोई उनका मित्र से मिल सकते हैं, ना उनका कोई आत्मसम्मान रह गया है। तो इस बेसिस में फेस ट्रांसप्लांट एक बहुत कार्यकारी और बहुत लाभदान साबित होंगे उनके लिए। सर, जैसे इंडिया जैसे देश में बहुत सुपरस्टिशंस हैं, और जैसे जब किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली नहीं चाहती कि वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे। लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पोस्टमार्टम तक नहीं करवाना चाहते। तो क्या ये चैलेंजिंग नहीं होगा, फिर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, जो ये बहुत चैलेंजिंग होगा और उसी में पत्रकारों का जो रोल है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर अखबार के जरिए अब जो अवेयरनेस है देहदान का, अभी कुछ संस्थाएं हैं जैसे राधा स्वामी सत्संग, जैसे दधीची देहदान संस्थान, ये साधारण लोगों में इसका प्रचार कर रहे हैं कि आपका देह ऐसे भी जल जाता है, वो देह को अगर आप किसी का भला हो जाए तो उसमें इतने लोगों का फायदा होगा। किडनी लेंगे, कॉर्निया आँख का हिस्सा लेंगे, लीवर लेंगे। तो इसमें बस जन जागरूकता का जरूरत है, सोशल अवेयरनेस का जरूरत है कि जो देह को आप जला दे रहे हैं उस देह को अगर आप दान कर देते हैं तो आप एक देह दान से कम 10-12 लोगों का फायदा होगा। 2 आंखें मिल जाएंगे, 2 किडनी मिल जाएंगे, 1 हार्ट मिल जाएगा, 2 लंग्स मिल जाएगा, 1 लीवर मिल जाएगा। तो शरीर के इतने सारे हिस्से, सिर्फ एक देह दान जो ब्रेन डेड है उनसे इतने सारे लोगों को लाभवान होंगे। सर, एक छोटा सा मोटिवेटिंग मैसेज जो आप लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? जितना ज़्यादा हो सके आप देहदान करिए और प्रॉपर तरीके से इसका बहुत सारे लीगल प्रोसीड्योर्स है उसको सब फॉलो करके अपना परिवार का सहमति लेके, और ओनली नेचुरल डेथ्स में देहदान होता है। नेचुरल डेथ्स मतलब जैसे ओल्ड एज में जिनका देहांत हो रहा है या जिनको एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई ट्रक या बस में चोट लग गया है, उनका कोमा में चले गए हैं, इस तरह का पेशेंट्स अपने सारे रिलेटिव्स का सहमति से इस तरह का पेशेंट्स देह दान, अंग दान कर सकते हैं। जो फेस ट्रांसप्लांट होता है वो उन लोगों में किया जाता है जिन लोगों में फेशियल डिस्फिगरमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे आपने बताया कि फेस एक मुख्य हिस्सा होता है हमारे किसी भी इंसान के आइडेंटिटी के लिए, लेकिन जब उस आइडेंटिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे फेशियल डिस्फिगरमेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा की वजह से इतना ज्यादा डिस्फिगरमेंट हुआ है जो छोटे मोटे सर्जरी से ठीक नहीं होता है, तभी हम ये सर्जरी ऑफर करते हैं। तो यूजुअली इसमें जो मोटिवेशन की जरूरी होता है वो यूजुअली फेशियल डिस्फिगरमेंट सर्जरी, उसको ठीक करने की सर्जरी से ज्यादा लंबे समय उसके बाद उनको जो दवाई लेना पड़ता है, उसके बाद उनको जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, उसमें मोटिवेशन की ज्यादा जरूरी होता है रादर देन फॉर द सर्जरी इटसेल्फ। क्योंकि सर्जरी के लिए पेशेंट्स जो है वो अगर इतने बार सर्जरी हो गया है जिसमें ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट्स का उसमें हाँ बोलने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू कोई भी इफेक्ट ना हो उस वजह उसके लिए। हम साइकोलॉजी के लिए आप क्या कुछ मतलब लोगों को स्कीम चलाएंगे या कैसे लोगों को उससे कोप अप करने के लिए बोले? सो यहाँ पे हमारा प्लान ये है कि जैसे इवन बिफोर सर्जरी पहले से हम पेशेंट्स को स्क्रीन करेंगे कि कौन सा पेशेंट ये सर्जरी के लिए अभी केपेबल है कि नहीं, वो हम स्क्रीन करते हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि क्या पेशेंट को डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई और साइकियाट्रिक बीमारी है कि नहीं, वो देखते हैं। अगर है तो उसका इलाज करेंगे सो दैट पेशेंट बिकम्स मोर केपेबल टू एक्सेप्ट द सर्जरी। उसका पहले से हम इलाज करते हैं। अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है फिर भी कोपिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम मदद करते हैं थ्रू सम साइकोथेरेपी, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कोपिंग स्किल्स ट्रेनिंग के माध्यम से उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको संभालने का उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएंगे। एंड आफ्टर सर्जरी भी अगर मान लीजिए वहाँ पे उनको दिक्कत हो रहा है तो अगेन
वी हैव टीम जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिसमें अगेन उनके साथ जाएंगे उनके लाइफ में कि अगर जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें समाधान कैसे निकाले। उसमें अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम इधर मेडिसिन देंगे या थेरेपी देंगे या दोनों भी देंगे।